हाँ VCE की वैल्यू 9.88 वोल्ट। यही आई है, यही है। हाँ, और VB की वैल्यू और VBE की वैल्यू 0.7 वोल्ट। वो तो 0.7 होगी। सर हाँ, गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग गुड टू ऑल। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और BCE की वैल्यू 9.88 वोल्ट। हाँ BCE ये और VE तो Okay, good morning to all. So, static class, we talk about fixed bias circuit. It is a fixed bias circuit here. Fixed bias. So, static class, it is a fixed bias circuit. In fixed bias circuit, we already told it is the simplest one. Why it is simplest one? Because we are here only resistor RB and VCC and RB, RC, and there is no RE resistance and there is a very less resistance. So it is simple and easy to calculate the value. So what we did in last class, we applied KVL at input loop. Input loop start from here, 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 and then goes to ground. There are captures C1 and C2. So we are doing DC analysis. So there is no use of these two capacitors. So generally we open circuit these two capacitors. These capacitors are open circuit. So there is no use of input, no use of output. So we are only doing the DC analysis here. So what we do in DC analysis, we apply KVL at input loop. We apply KVL at output loop. And the first equation is applying KVL at input loop. What is the input loop? VCC minus IBRB minus BE equal to 0. Here is VCC minus IBRB minus BE, this plus, this minus. It is a 0. It is equation number 1 as we discussed in last class. And from equation number 1, we calculate IB. What is IB? So IB is a VCC minus BE divided by RB. This is equation number 2. Now equation number 3 is a IC is equal to beta. So we discussed in last classes. And then equation number 4 is applying KVL at output loop. So what is output loop? VCC, here is VCC minus this plus, and here is minus IC into RC minus this plus, this minus, so minus VC equal to 0. So in last class, we tell these 4 equations. Input में KVL लगाया, equation 1, IB निकाला, equation 2, IC is equal to beta IB, equation number 3, and at output we are applying KVL. Now it's become equation number 4. So this is all about fixed bias. Now next thing is that what is how we find out the fixed bias improve stability or not improve stability. So we measure stability by stability factor. I already given you a recorded lecture about stability factors. There are 3 stability factors, but in our syllabus we discuss only about 1 stability factor, that is here. So what is here? In lecture number 10, refer that is 1 plus beta divided by 1 minus beta div upon dx. This is a stability factor. The maximum value of stability factor is 1 plus beta. This is the maximum value. And we know that the value of stability factor should be as low as possible. जितना कम है उतना अच्छा है. ये इसकी maximum value है. So means अगर if any question
the value of stability factor is less than 1 plus beta, so we can say circuit improves the stability. Now, how we can calculate the stability factor? So this is the formula for stability factor. So 1 plus beta is constant. So now we have to calculate this way, div upon di. So we have to calculate div upon dic. So from then we put div upon dic in this equation number. Yes, yes. So then we find the stability factor. Now, what is the equation number 1? So what is now how we find div upon dic? So please be remember, generally students are doing wrong here. कि जो हमें div upon di से निकालना है वो हमेशा इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे. Be very careful. ये हमेशा बच्चे गलत निकालते हैं. div upon dic हमेशा हम इक्वेशन नंबर 1 से यूज करेंगे. What is इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 था VCC माइनस IBRB. इक्वेशन 1 मतलब क्या है कि जैसे ही हमने इनपुट में तुरंत केवीएल लगाया और हमने कोई वैल्यू भी चेंज नहीं किया, मतलब कि देयर इज नो इंटरचेंज. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 equal to 0. Now we have to find the div upon dic. So differentiating equation 1, differentiating with respect to हमें निकाला div upon dic. So we have differentiate equation with respect to ic. अब ये इक्वेशन जो 1 है, we are differentiating equation 1 with respect to ic. So what will we get? VCC is a constant. If we differentiate VCC with respect to IC, we get 0 because VCC is a constant. Here minus IBRB. So here we get minus RB and div upon dic. We are differentiating with respect to IC because IC can change. Div upon dic. Plus voltage between base and emitter, it is again a constant. So when we differentiate this value with respect to IC, we again get a 0. So then by equation this, we find div upon dic div upon dic is a 0. Is it clear? div upon dic is a 0. थोड़ा पहले चीज ध्यान रखना कि नोट पे डिपेंडेंट नहीं रहना. ये क्लास और जो मैं यहाँ करा रहा हूँ दैट इज सफिशिएंट. तो ट्राई टू डू दिस. ठीक है, नोट्स आप बनाते जाइए. तो div upon dic is a 0. When div upon dic is 0, we put this value in this equation. So denominator term 1 minus beta multiplied by 0. So denominator term having only 1. So we can say stability factor is a 1 plus beta and it is the maximum value. So we can simply say this circuit doesn't increase any amount of stability. It is an unstable circuit. Transistors Q points may be shift in a saturation region or maybe in a cutoff region. So we generally it is a simple one because its calculation is very easy and we did not improve the stability factor. Now all of you kindly click this picture. So this is a numerical. So here is VCC, RB is here, BE क्वेश्चन में गिवन है 0.7 ले लीजिए, RC 2.2 किलो ओम, VC आपको निकालना है, बीटा इज 50. तो आप क्या निकालेंगे? क्वेश्चन में पहली चीज है फाइंड द Q पॉइंट. Q पॉइंट मींस द वैल्यू ऑफ IC एंड Q पॉइंट्स अगर निकालने की बोलते हैं इसका मतलब हमें IC की वैल्यू निकालनी है और VCE की वैल्यू निकालनी है. दिस इज Q पॉइंट. सेकेंड क्वेश्चन है इसी में draw the DC load line. Draw the DC load line. ठीक है, draw the DC load line. So now these are two questions. तो लास्ट क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन कराया है, तो आपको ऐसे ही कर लेंगे. Now next biasing, we are going for next biasing.
नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये नोट्स में नहीं है तो आप प्लीज यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, इट इज नॉट रिटन इन नोट्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज अमीटर वायर, अमीटर वायर, ठीक है। मेक सर्किट हियर, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी का भी आएगा, न्यूमेरिकल का भी। इन थ्योरी क्वेश्चन explain the emitter wire. So what we explain in emitter wire, we make a circuit like this, then after making this circuit we have to find the value of IB, IC and VC, these three values IB, IC and VC, equation number 2, 3 and 4, मतलब अप्लाई केवल इनपुट लूप, अप्लाई केवल एट आउटपुट लूप। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया इसका एनालिसिस, ठीक है। तो एग्जाम में जनरली न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं इसमें, तो फर्स्ट वी डू एनालिसिस पार्ट। So here is emitter wires. So now look the difference between fixed wires and emitter wires. So what is difference between fixed and emitter wires? अर्पित बताओ भाई, फिक्स्ड वायर emitter wires क्या डिफरेंस है? VCC here? ये कैपेसिटर्स हैं। नहीं, कैपेसिटर तो सब में रहेंगे, अभी हमारी जरूरत नहीं है बेटा, ये है रेजिस्टेंस RE। In fixed wires there is no RE, ठीक है। कैपेसिटर इज, कैपेसिटर क्या काम है वो हम लेटर ऑन लेंगे, बाद में बताएंगे कैपेसिटर क्या काम है। अभी जब भी बाइसिंग में आएंगे तो कैपेसिटर जो भी है उसको हमें ओपन सर्किट करना है। ओपन सर्किट मतलब ओपन कर दिया, कट गया, हट गया, ओपन सर्किट मतलब भी हट गया। जब ये हट गया तो इसकी कोई मतलब नहीं रह गया, इसका भी कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। दीज आर AC, ये हमारा AC है, एंड दिस इज अ DC। AC for lower case letter is A for AC and upper case letter is for DC, ठीक है। Now the difference is only this, we are having a resistor RE and connecting a RE with a meter, ठीक है। Now we will do all the things same, वही चीज हमें करना है, applying KVL at input loop, applying KVL at input loop। तो वी स्टार्ट फ्रॉम, अब इनपुट कहाँ है? इनपुट ये, इनपुट स्टार्ट हम VCC से करेंगे। तो व्हाट विल हैपन, VCC माइनस IB माइनस IBRB। बेटा ध्यान रखना, IB एंड RB आर इन सबस्क्रिप्ट, ठीक है, एंड कैपिटल B, and this is voltage between, then voltage between base and emitter, ठीक है। and new term is here, new term क्या आएगा? IE। ध्यान रखना IE जो है वो कैप्स लेटर में ही होगा, मैंने यहाँ पे वो कर दिया थे, I in caps, IERE equal to 0। be careful, this is our first equation, it is our first equation। मैं आपको बिल्कुल इक्वेशन याद करा रहा हूँ कि ये इक्वेशन है, अगर इक्वेशन 1 2 3 माइंड में रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज जनरली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी फाइंड, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे? IV की वैल्यू, ठीक है। हियर इज IB एंड हियर करंट इज IE, तो वी रिप्लेस करंट IE इन टर्म्स ऑफ IB। तो IE और IB में क्या रिलेशन है? व्हाट इज IE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा IB, और यही वैल्यू थी गामा। अगर आपने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखा है तो ये वैल्यू थी हमारी गामा, ठीक है। यस सर, गामा। So the relation between IE equal to 1 plus beta IB, because from equation 1 we have to calculate IB, equation 1 से हमें IB निकालना है, तो IE टर्म है, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 plus beta IB। Now so what will be the IB? So from equation 1 we calculate IB and IB goes to, बताओ भाई अर्पित। सर बता रहा हूँ, एक मिनट। IB क्या होगा? IB इज ये दोनों बैटरीज हैं, तो जाएगा VCC
VCC, माइनस 1 प्लस बीटा आर ई। हाँ VCC नहीं, माइनस BE, बीई। BE यस सर। डिवाइड बाई RB प्लस 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा आर बी। RE, आर ई। ठीक है, R, ई। ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3? इक्वेशन नंबर 3 सम में वही IC इक्वल टू बीटा आई। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 हम वी फाइंड IV। हर एक YC में हमारा मेन टारगेट वही है, Q पॉइंट निकालना। Q पॉइंट मतलब IC और VC वैल्यू। तो IC इक्वल टू बीटा IB, IC इक्वल टू बीटा I। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देन वी गो फॉर अप्लाइंग केबल एट आउटपुट लूप। अप्लाइंग KVL, ठीक है। अब किस लूप में करेंगे? आउटपुट लूप में। सर हाँ बोलो। सर जैसे VBE जो है ये बेस और एमिटर के बीच का वोल्टेज है, हाँ हाँ, तो ये टर्म तो कहीं डायग्राम में दिया नहीं, तो इसको कंसीडर बेटा कर लेंगे। डायग्राम में देखो, यहाँ देखो, हमने इनपुट लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना बेटा, इधर देखो। इनपुट लूप यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। Yes, करंट sir. इधर गई, करंट इधर गई। ये कौन सी करंट है? IV वाली करंट, ठीक है। IB यस सर। हाँ हाँ, करंट इधर गई और ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। माइनस हो गया। नाउ करंट इधर गई, ठीक है। अभी कौन सी करंट है? DC करंट, IV वाली करंट है। अब चूंकि इधर कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर तो ओपन हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर कभी भी DC करंट को पास होने नहीं देगा, ठीक है। सारी करंट इधर आ जाएंगी, ठीक। हियर इज द बेस, यस सर। ठीक, एंड हियर इज एमीटर। अब करंट इसके अंदर, इसके बाद वो ट्रांजिस्टर के अंदर चली गई, ट्रांजिस्टर के अंदर गई और फिर ये अमीटर से, अब हमें क्या करना है भाई, ट्रांजिस्टर के अंदर गई फिर अमीटर से बाहर आ रही है, कैसे आ रही है? तो हम क्या करेंगे, बेस और अमीटर का पोटेंशियल, क्योंकि लूप तो कंप्लीट करनी है ना, लूप तो कंप्लीट होगा, यहाँ से लेकर ग्राउंड तक जाएगा हमें। तो हमें बेस से अमीटर के बीच में भाई बेस और अमीटर है, तो बेस और अमीटर के बीच का पोटेंशियल भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है भाई लूप, अदरवाइज अगर हम ये पोटेंशियल नहीं लेंगे तो हमारी लूप कहाँ कंप्लीट होगी? आपने बेस पे लिया, अब फिर से अमीटर पे आ गए, तो व्हाट इज लूपिंग? लूपिंग नहीं हो रहा भाई इसमें, ठीक है। तो लूप आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। और बताइए भाई। ओके सर। सर ये हाँ हम IE इक्वल्स टू IB इंटू गामा भी तो ले सकते थे। हाँ बेटा, गामा ले सकते थे, बट गामा की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस बीटा। गामा इज तो सर ये बीटा और गामा, अगर बीटा की वैल्यू दी हुई होगी ना फिर तो हाँ, बीटा की वैल्यू हमेशा, क्वेश्चन बीटा की वैल्यू हमेशा गिवन रहेगी, बिना बीटा वैल्यू गिवन नहीं है। या तो बीटा की वैल्यू गिवन रहेगी तो अल्फा की। इफ वी नो अल्फा तो फ्रॉम अल्फा व्हाट इज द बीटा? बीटा इज द अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, जो अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो गो अहेड। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेनी कहाँ गई? बताओ भाई, बेनी कहाँ गया? बेनू बताओ बेटा। हाँ सर इसमें एक वो था कि सर इसमें आपने जो कैपिटल जो लिखवाया था उसका मतलब क्या है? बेटा कैपेसिटर का जो अभी हम नेक्स्ट, जो हमें एक सर्किट 9 एम्पलीफायर्स की, तो देन वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई AC सिग्नल ओनली, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग DC एनालिसिस। DC एनालिसिस में सारे AC को हमने कर दिया 0, ठीक है। जो बाइसिंग न्यूमेरिकल के बाद हम लेंगे एम्पलीफायर की सर्किट, तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैपेसिटर क्या रोल है। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करें, अभी सिंपल समझिए, जो भी कैपेसिटर है आपको उसको ओपन कर देना है, हटा देना है,
ठीक है, only if there. So what is the role of capacitor? We take after the biasing. Biasing जैसे complete हो जाएगी 4 biasing methods है. After we take what is the role of capacitor. ठीक है, सिंपल समझिए. हाँ बताओ. हाँ एक चीज और कि फिक्स्ड और इसमें खाली IRE का अंतर है जो एमीटर पे जो. हाँ तो सर इसका रोल क्या होगा? करंट को कम करेगा ग्राउंड की तरफ या फिर कुछ? लेट मी कंप्लीट द टॉपिक, तो उसमें आ जाएगा वो. ठीक है, जैसे मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा उसमें आ जाएगा. अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया. ठीक है, नाउ अप्लाइंग केबल एट आउटपुट लूप. तो व्हाट इज द आउटपुट लूप? आउटपुट लूप कम फ्रॉम हियर VCC minus ICRC minus ICR plus minus RCRC. Then we take minus VC. हाँ माइनस VC. ये वैल्यू वो हमें लेना पड़ेगा. और ध्यान रखिएगा ये प्लस है और ये माइनस है. माइनस VC माइनस IR इक्वल टू 0. आप केबल लगा, हाँ माइनस IR इक्वल टू 0. तो आप केबल यहाँ लगा देंगे. ठीक है, VCC माइनस ICRC माइनस VCE. जाने के क्या सब्स्क्रिप्ट में VCE माइनस IERE इक्वल टू 0. ठीक है, this is output KVL. So from output KVL we are finding the VCE. What is the VCE? VCE equal to, यानी कि C और E दोनों सब्स्क्रिप्ट में है, बट यहाँ लिखने में प्रॉब्लम है इसलिए मैं लिखा हूँ, आप उसको कर लीजिएगा. VCC माइनस IC, यानी कि IC and IE both are approximate same value. IC and IE are approximate same value. So we take IC and IE equal to same. मतलब IC equal to IE because both value are very much same for numerical problem. सर IC और IE. बेटा व्हाट इज IC? देखिए ध्यान से सर बेटा इधर बेटा ये है, ये करंट इक्वेशन है. IE इक्वल टू IC प्लस ID. ठीक है, अब हमने बताया कि हमने ये बताया कि IE की जो वैल्यू होती है वो होती है मिली एम्पियर में. ठीक है, और IC की वैल्यू ये भी मिली एम्पियर में, और ये वैल्यू जो है ये माइक्रो एम्पियर में आएगी. ठीक है, तो जब हम ये ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, अब चूंकि मिली को माइक्रो में ऐड करेंगे तो लगभग सेम वैल्यू आ जाती है. डेसिमल के 3 पॉइंट्स पर उसका इफेक्ट दिखेगा, और डेसिमल के 3 पॉइंट्स तो हम ऑटोमेटिकली छोड़ ही देते हैं उसको. ठीक है, तो जनरली हम IC और IE को सेम ले सकते हैं. ठीक है, मतलब अगर नहीं सिमिलर है. हाँ नहीं जरूरी नहीं है, अगर आपको सिंप्लीफाई करना न्यूमेरिकल में, अगर आप चाहो तो आप IC और IE इक्वल मत लो, दैट्स नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो जनरली न्यूमेरिकल वी टेक इक्वल. ठीक है, अगर नहीं भी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इक्वल वैल्यू लेने से हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा बस सर्किट, और क्या जो मैंने न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन है वो कम पड़ जाएंगे. अदरवाइज टेक द वैल्यू ऑफ IE. तो दिस इज ऑल अबाउट अमीटर बायस. नाउ क्वेश्चन दिस कि व्हाट हैपन व्हेन वी आर एडिंग वन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस RE एट अमीटर. बेटा यहाँ देखिए जो RE है, अगर आप फिगर्स देखिए RE यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम सिंपल करते हैं एक तरह से ये आउटपुट में लगा हुआ है RE. ठीक है, नाउ IB इज द इनपुट करंट. IB क्या हमारा इनपुट करंट है, और ये RE जो है रेजिस्टेंस, ये इनपुट करंट की इक्वेशन में आ रही है. दिस इज आवर इनपुट वोल्टेज. ये सारे इनपुट वोल्टेज हैं भाई. इनपुट करंट क्या होगा? इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस. करंट इज इनपुट करंट इज इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस. तो हियर इज द वोल्टेज, तो इसका मतलब ये इनपुट और रेजिस्टेंस है, और ये जो RE है ये इनपुट लूप में भी आ रहा है और आउटपुट लूप दोनों में आ रहे हैं. तो वी कैन से RE इज अ प्रोवाइडिंग अ फीडबैक. ठीक है, तो RE इज अ प्रोवाइडिंग अ फीडबैक बिकॉज इट इज shown in output but its behavior coming into input. ठीक है, तो RE is a feedback resistance. अगेन ये रेजिस्टेंस IB की वैल्यू कम करेगी ज्यादा करेगी? यस प्लीज. RE की वैल्यू IB को कम कर रही है. ठीक है, तो ये कौन सा फीडबैक होगा? नाउ इट इज अ नेगेटिव फीडबैक. If anything RE is reducing the input current. Input current हमारा IB current base current है. It is reducing the input current. It simply means it is a resistance. It is reducing the input current, means it is a feedback resistance, and it is providing a negative feedback. I already told you negative feedback always increase the stability.
ठीक है, गेन को कम कर देगा, स्टेबिलिटी क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी। ठीक है, so that is the role of RE, it increase the stability by providing a negative phase। सेकेंड रीजन मान लीजिए, एक तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसने स्टेबिलिटी बढ़ा दिया। सेकेंड रीजन ये है कि मान लीजिए somehow बिकॉज ऑफ टेम्परेचर या कोई भी रीजन उसका है, आईसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। आईसी इंक्रीज हो गया मतलब ट्रांजिस्टर अनस्टेबल हो गया, वो सेचुरेशन में आ सकता है। somehow टेम्परेचर बढ़ गया, जो भी हो गया। हमने एक क्वेश्चन था, व्हाट इज आईसी, आईसी इक्वल बीटा आई प्लस आईसीबी हो, तो टेम्परेचर बढ़ा, आईसीओ बढ़ा, तो आईसी इंक्रीज हो गया। somehow आईसी इंक्रीज, जब आईसी इंक्रीज हो गया तो व्हाट हैपेंस, आईई भी बढ़ जाएगा। अगर ये आईसी बढ़ गया, इस इक्वेशन से देखिए, इफ आईसी इंक्रीज, आईई बढ़ गया। ठीक बेटा, ये हम क्लास कंटिन्यू, बेटा हम क्लास कंटिन्यू करेंगे भी, ठीक है, आप लोग जाइए मत, अगर टाइम खत्म होने वाला, हम क्लास कंटिन्यू करेंगे अभी। तो somehow if temperature increase, IC increase, if IC increase then value of I increase। ठीक है, जब IE की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, here is IE, so means here we increase the voltage drop। ठीक है, अब ये जो आउटपुट, ये फीडबैक वोल्टेज ड्रॉप है, जब ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा यहाँ पे तो ये IB करंट को कम कर देगा। क्लियर है, somehow टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, आईसी इंक्रीज हो गया, आईसी इंक्रीज हो गया, आईसी निकल गया। इफ आई इंक्रीज तो हियर वोल्टेज ड्रॉप विल इंक्रीज, इफ दिस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज देन दिस रिड्यूस द बेस करंट। इफ बेस करंट रिड्यूस, बेस करंट रिड्यूस हो गया तो आईसी इक्वल टू बीटा आईवी, आईसी भी क्या हो गई हमारी, रिड्यूस हो गई। एक बार टेम्परेचर आईसी को बढ़ा रहा है और आरई जो हमारा फीडबैक रजिस्टर है वो आईसी को कम कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, एक के बाद दूसरा चीज कम कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल मींस, हाँ बताओ। और एक बात और, आप अगर इधर टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हो तो इसका मतलब लीकेज करंट का रोल आएगा। लीकेज करंट का रोल आएगा तो आईसी बढ़ेगी, आईसी बढ़ेगी तो बीटा भी बढ़ेगा, तो जब बीटा बढ़ेगा तो नहीं, आईसी और बीटा में कोई रिलेशन नहीं है बेटा। आईसी बढ़ेगी, किसने कर दिया, बीटा बढ़ेगी। तो टेम्परेचर के साथ अगर लीकेज करंट फ्लो करेगा, टेम्परेचर के साथ नहीं, टेम्परेचर के साथ आईसी इक्वल टू बीटा आईवी प्लस आईसीईओ, तो आईसीईओ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें बीटा का क्या रोल है, देयर इज नो रोल ऑफ बीटा। बीटा भी चेंज होगा, बीटा तब, यस प्लीज, मैंने ये बताया है कि जब हम ट्रांजिस्टर को किसी दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करेंगे तो उसकी बीटा की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ये हमने बताया। टेम्परेचर से बीटा को कोई रिलेशन हमने बताया, टेम्परेचर बढ़ा, आईसीयू बढ़ा, आईसीयू बढ़ा, आईसीयू बढ़ा, ये हमने आपको बताया। ठीक है, बीटा इज अ डिफरेंट, बीटा तभी चेंज होगा जब हम ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। ये पूरा का पूरा जो ट्रांजिस्टर है, जब यही पूरा चेंज हो जाएगा, मान लो सब आओ सर्किट में ट्रांजिस्टर खराब हो गया, इसकी जगह हम दूसरा ट्रांजिस्टर ला रहे हैं सर्किट में, तभी बीटा चेंज थे, अदरवाइज नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ा, आईसीयू बढ़ा, आईसीयू बढ़ा, आईसी बढ़ गया, आईसी बढ़ गया, आईई बढ़ गया, आईई बढ़ा, देन देयर इज वोल्टेज इंक्रीज, दिस पोटेंशियल विल डिक्रीज द आईवी, और आईवी घट गया तो आईसी इक्वल टू बीटा आईवी, तो देन आईसी विल बी डिक्रीज। तो सिंपल मतलब है कि एक फोर्स आईसी बढ़ा रहा है, दूसरा फोर्स आईसी कम कर रहा है, तो वी कैन से हियर बी प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो RE is the feedback resistor, it is a negative feedback resistor which further improve the stability. Yes, any problem? सर, इसका मतलब लीकेज करंट नहीं होगी बेटा, लीकेज करंट होगी, लीकेज करंट कभी जीरो नहीं कर सकता। अगर लीकेज करंट में जीरो कर दिया तो हमारा फिर सब कुछ तो खत्म ही हो गया। लीकेज करंट जरूर होगी, लीकेज करंट कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, बट उसका आपने इन्वॉल्वमेंट तो दिखाया नहीं उसका बेटा, इसमें नहीं, इक्वेशंस में आप नहीं आए। लीकेज करंट इज द सोर्स ऑफ लीकेज करंट टेम्परेचर। ठीक है, हम उसको किसी मॉडल में नहीं शो कर सकते। हियर वी आर डिनोटिंग द मॉडल। अगर हम लीकेज करंट को मॉडल में दिखा सकें, शो कर सकें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अगर क्वेश्चन में लीकेज करंट गिवन है तो हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नाउ आईसी मतलब कि क्वेश्चन में उसको जैसे आपने आईसी इज इक्वल टू बीटा आईवी प्लस आईसीईओ तो बताया था, जब अगर क्वेश्चन में लीकेज करंट की वैल्यू होगी तभी इसको लिखेंगे, वरना हाँ, बट इस बायसी वाले क्वेश्चन में कहीं लीकेज करंट की तुम्हें वैल्यू नहीं गिवन रहेगी। ठीक है, लीकेज करंट रहेगी तो उसको हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ इट इज ऑल अबाउट फिक्स्ड बायस। अब हमें निकालनी है स्टेबिलिटी फैक्टर। यस, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर? 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा
DIB अपॉन DIC। ठीक है, ध्यान रखिए स्टेबिलिटी फैक्टर दूसरा क्वेश्चन हो जाता है ये। अगर बाइसिंग पूछा है तो बाइसिंग यहीं तक, जहां तक हमने बताया है आपको यहीं तक एक्सप्लेन करनी है। वो दिस ऑल दैट वन इज एनालिसिस ऑफ बाइसिंग। नाउ स्टेबिलिटी फैक्टर इज डिफरेंट क्वेश्चन। तो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है, क्या निकलना है? DIB अपॉन DIC। From where we find the DIB upon DIC? From equation 1 number 1. Be very careful. We find the DIB upon DIC from equation number 1. बच्चे जहाँ गलती करेंगे हो जाता है। Equation number 1 क्या था? VCC minus IBRB plus VBE minus BVE minus IERE। तो IE की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे IB plus IC। ध्यान रखिए IE की जगह पे हम लिख रहे हैं IB plus IC। IE की जगह पे हम 1 plus बीटा IB नहीं करेंगे। ध्यान रखिए ये मिस्टेक कॉमन होगी। IE की जगह पे हम 1 plus बीटा IB ऑफकोर्स हम लिख सकते हैं, और स्टेबिलिटी फैक्टर हमने निकालेंगे क्योंकि हमें निकालना है DIB upon DIC। हम IC का टर्म लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वी कांट पुट 1 plus बीटा IB। नाउ डिफरेंशिएट करो, ये टर्म क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू IC। तो IC के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ये टर्म हो जाएगा 0 माइनस RB इंटू DIB अपॉन DIC माइनस V इज 0। बेटा नेक्स्ट क्लास नहीं ले पाएंगे, मेरा डेटा खत्म हो गया। आई थिंक मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग के चक्कर में डेटा ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास मंडे को ले लेंगे। आज अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेटा मुझे लग रहा है दिख रहा है खत्म हो रहा है। 0 माइनस IBRB DIB अपॉन DIC